Hello, friends. Welcome to the second episode of Uncut Answers with Umesh. As I promised you all that we will bring all the prominent personalities from various sections of the society. So today we have a very prominent face among us. He is not relied on any introduction. So please welcome Professor KG Suresh, currently Vice Chancellor of Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication. And if we talk about the experience and the achievements of Professor Suresh sir, so formerly he was Dean at University of Petroleum and Energy Studies, Professor Emeritus at APJ Institute of Mass Communication, Professor Emeritus at Jharkhand Lake City University, former Director General of the prestigious Indian Institute of Mass Communication. And if we talk about his journalism experiences, then Professor Suresh served as Senior Consulting Editor in DD News and Chief Correspondent at PTI. He's graduated from Oxford University and Delhi University. And apart from that, if we talk about the experiences and achievements of KG Suresh, then it will take the complete episode of today. So apart from going on that, so today the topic of discussion with Professor KG Suresh is that drowning standards and credibility of Indian TV journalism. So welcome, sir. Well, first of all, I would like to welcome you to our show. I'm very honored that you've given the time for our viewers and students and all the viewers who are watching this show. So we'll be. Thank you, Umesh. It's a real pleasure connecting with the younger generation. I'm really happy to know that youngsters like you are today very active on social media and are reaching out to thousands of people across the country. And as a senior in the profession, it is my responsibility to support you. And it's a really, I feel happy joining you today. Thank you so much, sir. That's so kind of words from you. So, sir, as I already talked that today's topic is drowning standards and credibility of Indian TV media. So my first question of discussion in this regard for you that how do you see as a professor, as you served as journalist and a professor and also as an academician in many platforms, many universities and many channels, TV channels. So how do you see the crisis of content or stories in the current TV media, current Indian TV media? How do you look at the crisis of content or stories? Well, I think that, well, as I said, that today I find that television news, if you are referring to, is more about entertainment rather than information or education. And you find that there is an absence of ground reporting, and the entire focus is on what do you call meaningless debates and discussions which don't take you anywhere. There is cacophony, they are noisy, and at the end of the discussions and debates, you don't end up any wiser. Uh, there is no, they take up very superficial issues, and certainly a great amount of what is today being shown on television, news television, is not journalism, at least the journalism that I used to do, the journalism that I am aware of, the journalism that I teach. It's different from that. So yes, I agree with you. So sir, after that do you see that there is any kind of और मतलब ऐसा कि चल रहा है जैसे कि आज के टाइम में हम देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं पहले होता था कि लंबी लंबी रिसर्च स्टोरीज होती थी, रिपोर्ट्स होती थी, उनकी क्रेडिबिलिटीज होती थी, जर्नलिस्ट लंबे समय तक काम करते थे और एक जर्नलिस्ट की बात की एक विश्वसनीयता होती थी कि हाँ भाई फलाने पत्रकार ने बात बोली है तो ये बात बिल्कुल सही होगी और उसने कुछ ना कुछ रिसर्च के साथ, जैसा कि आज की हमारी जनरेशन है जो आपसे पढ़ रही है, आप जैसे मतलब प्रोफेसर से, इसके अलावा हमसे जो 2-3 साल 10 साल 5 साल बाद की जनरेशन है, उनके पास एक रिसर्च एटीट्यूड की कमी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एज अ प्रोफेसर, एज अ सीनियर टीचर। बिल्कुल, मैं वही बता रहा था उमेश कि सतही तौर पर पत्रकारिता कर रहे हैं अब हम। मैं अक्सर बोलता हूं कि रिसर्च हैज बीन रिप्लेस्ड बाय गूगल सर्च। अब लोगों ने जो है पढ़ना लिखना तो बंद कर दिया है और अब जो मन में आया वो बोल देते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। कभी कभी तो आप कई एंकर्स को देखते हैं तो लगता नहीं है कि वो पत्रकार हैं, वो क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता है।
और जन सरोकार नहीं है। जो भी विषय उठा रहे हैं उसका जनता से कोई संबंध नहीं है, आम जनता से कोई सरोकार नहीं है, न समाज से उसका कोई सरोकार है। ऐसा विषयों को लेकर आज सारी चर्चाएं होती है, कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं है। और विश्वसनीयता की जहां तक बात है, देखिए पहले एक जमाने में लोग ये उत्सुकता ये रहती थी कि किसी पत्रकार ने क्या लिखा है या क्या बोल रहा है कोई चैनल। आज मन में ये सवाल आता है कि क्यों बोल रहा है और क्यों लिखा है। यानी कि आपकी मंशा पर, आपकी नीयत पर जो है, चाहे वो दर्शक हो, पाठक हो, श्रोता हो, उनके मन में संशय आ गया है। उनको विश्वास नहीं रहा है कि, और ध्रुवीकरण हो गया है मीडिया में, बहुत बड़ा ध्रुवीकरण हो गया है जो एक लोकतंत्र के या मीडिया के अपने हित में नहीं है, मेरा ये मानना है। सर इसके अलावा आप इस चीज को किस तरह देखते हैं कि जैसे एक हमने एक फेज, हमसे सीनियर लोगों ने और आप लोग उस फेज में रहे हैं कि जो इमरजेंसी का दौर था 75 का, तो उसमें जो पत्रकारिता हुई थी, उसमें जो इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी, एक किताब कुलदीप नैयर सर की है, उसमें उन्होंने कई चीजों का, कई घटनाओं का ऐसा जिक्र किया है कि हम ऐसी घटनाओं को लिख रहे थे कि जिनका छपना भी तय नहीं था, हम ऐसी घटनाओं का नहीं, कर रहे। देखिए मैं आपको बताऊं, लाल कृष्ण आडवाणी जी जो 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उस वक्त सूचना प्रसारण मंत्री बने, तो उन्होंने आपातकाल के बारे में एक जगह लिखा है कि जब पत्रकारों से, कई पत्रकारों से जब झुकने के लिए कहा गया तो वो रेंगने लग गए। तो पत्रकारिता ने वो दौर भी देखा है जहां पुलिस इंस्पेक्टर तय करते थे कि क्या प्रकाशित होना है, यह आपातकाल के दौरान हमने देखा है। तो जरूरी नहीं है कि सारी गलतियां हम मढ़ दें सरकारों पर। कई बार जिसको कहते हैं कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो मीडिया जो है वो भी जो है जरूरत से ज्यादा समझौता कर लेती है और पत्रकार पक्षकार बन जाता है। पत्रकारिता का धर्म जी सर, न सत्ता पक्ष का है न विपक्ष का है, बल्कि जन पक्ष का है। तो लेकिन जन पक्ष के मुद्दे जो है आपको कम नजर आते हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा सर आपने, और आपने जैसा कि बिल्कुल ये दुरुस्त फरमाया। एक और बात है सर, जैसा कि हम उस चीज को कहते हैं कि वो एक तरह से इम्पोज्ड इमरजेंसी थी, कि 75 का दौर था कि इमरजेंसी इम्पोज की गई, अथॉरिटेरियन पॉलिसीज आई और सेंसरशिप लगी और ये सब चीजें थी उस दौर में। लेकिन जैसा आज का दौर है, आज कोई सेंसरशिप तो नहीं लग रही है। क्या कहीं ना कहीं आप इसको मतलब अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं इसको आप ये देखते हैं कि ये एक कॉम्प्रोमाइज्ड इमरजेंसी का दौर तो नहीं है कहीं, कि एक नहीं, कॉम्प्रोमाइज्ड देखिए इमरजेंसी तो वो होता है जो सरकार के ओर से होता है, लेकिन अगर मीडिया हाउस खुद ही तय कर लें अपने व्यावसायिक कारणों के वजह से कि भाई मुझे ये करना है, तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने पुलिस इंस्पेक्टर बना रखा। आज भी कई चैनल, कई डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो बिल्कुल निर्भीकता से सरकार की आलोचना करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आलोचना करने पर जो है आपको जो है बंद किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसा तो आपका स्थिति आज नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये सारा दोष जो है सरकारों पर मढ़ना, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो भी उचित नहीं है। मीडिया खुद भी आत्मावलोकन करें कि कहां विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह क्यों उठ रहा है और उसका कारण क्या है। सर आप, अच्छा, विचारधाराओं के संघर्ष को आप किस तरह देखते हैं, जो आज के दौर में पिछले 5-7 साल में जो वैचारिक संघर्ष और विचारधाराओं का संघर्ष जो उभर कर निकला है, आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं कि मतलब जो विचारधारा का भी एक संघर्ष बना है कि अगर कोई वैसे बोल रहा, कोई अगर मतलब किसी भी तरह की बात करे, अगर कोई जन सरोकार की बात कर रहा है तो इधर वाले उसे बोलेंगे कि भैया दूसरे वालों को लेके आया है, इधर वाले बोलेंगे, अगर वो बीत कहीं, मतलब कुल मिला के ये है कि कोई आदमी अगर निष्पक्ष भी बात कर रहा है तो उसको किसी ना किसी विचारधारा से जोड़ दे रहे हैं, जो कि एक तरह से पूर्वाग्रह भाई है। ध्रुवीकरण हुआ है, ध्रुवीकरण हुआ है, जिसके चलते जो है हम अक्सर कहते थे मतदाता का ध्रुवीकरण हुआ है, लेकिन पत्रकार का भी ध्रुवीकरण हुआ है। यहां तक तो स्थिति तो इतनी खराब हो गई है कि अगर
कोई पत्रकार के साथ कोई बुरा सलूक किया जाता है तो हम उसकी मजम्मत कई लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो एक विशेष राज्य सरकार ने किया है, और कई लोग मजम्मत इसलिए करते हैं क्योंकि एक विशेष राज्य सरकार ने किया है। ये भी गलत है। मैं मानता हूं कि अगर पत्रकार पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह कोई भी उठाता है, तब जो है सभी पत्रकारों को एकजुट होना चाहिए। वैचारिक मतभेद अपनी जगह है और वो स्वाभाविक है, एक लोकतंत्र में होगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। डिसेंट इज कि द सेफ्टी वैचारिक वॉल टू अगर आपका अपना डेमोक्रेसी। एक विचार है तो देखिए, जो अखबारों में जो संपादकीय है वो क्या है, अपना विचार रखने की तो जगह है। तो वैचारिक तो हमेशा से रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई एडिटोरियल लाइन किसको कहते हैं, अखबारों में भी रहा है तो चैनल का भी रहेगा। मात्र दिक्कत इसमें आती है जब आप उसमें आप समाचारों में विचार मिश्रित करके आप प्रस्तुत करते हैं, वहां दिक्कत आती है। वो नहीं होना चाहिए। समाचार निष्पक्ष होने चाहिए। विचार जो है आप अपने विचार के, विचारधारा के अनुसार आप अपना प्रस्तुत कर सकते हैं, संपादकीय प्रस्तुत कर सकते हैं, एडिटोरियल लाइन दे सकते हैं, लेकिन समाचार निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। तटस्थता का यह मतलब नहीं है कि गलत गलत नहीं है और सही सही नहीं है। तटस्थता का मतलब है न्यूट्रल अंपायर। मैं अक्सर क्रिकेट की भाषा में कहता हूं कि पत्रकार की भूमिका जो है न्यूट्रल अंपायर की है। कोई अगर आउट हो जाता है तो उसको तो बताना ही पड़ेगा कि भाई आप आउट हो गए हैं। किसी ने एलबीडब्ल्यू हो गया तो वो भी बताना पड़ेगा हैं। अगर किसी ने छक्का मारा है, चौका मारा है, तो वो भी बताना पड़ेगा। तो ये अंपायर का काम है। अच्छा काम किया तो वो भी बोलता है, अगर आउट हो गया तो वो भी बोलता है, फाउल हो गया तो वो भी बोलता है। तो न्यूट्रल अंपायर का काम है भूमि। ये नहीं कि अच्छा काम हो रहा है तो सिर्फ तारीफ करता है, बुरा काम होता है तो चुप हो जाता है, या बुरा काम होता है सिर्फ वही दिखाता है, अच्छा काम की चर्चा ही नहीं करता है। लगता है कि वो निष्पक्षता नहीं है। तटस्थता का मतलब है कि अच्छा अगर कोई अभियान है, चाहे कोई सरकार क्यों ना हो, उसमें समर्थन करना है, जनहित में है, व्यापक जनहित में है, व्यापक राष्ट्रहित में है, तो उसको समर्थन करना है। अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है जो जनहित में नहीं है तो उसकी आलोचना करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो मध्यम मार्ग भगवान बुद्ध ने जो हमको दिखाया, उस मध्यम मार्ग पर चलने की आवश्यकता है मीडिया को। तो कुल मिला के मतलब वही है कि डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल टू डेमोक्रेसी, बट देयर आर आल्सो द मॉरल लिमिटेशंस। सो सर, अगर वो सब ठीक है, लेकिन जो अभी करंट टीवी सिनारियो, जो करंट टीवी मीडिया का सिनारियो है, इससे जो नेगेटिवली हमारा यूथ इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसका उसको मतलब किस तरह देखते हैं आप, और उसको किस तरह मतलब एक ट्रैक पे लाया जा सकता है, उसको क्या हम सजेस्ट कर सकते हैं कि मतलब जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस्ड यूथ है, जो मतलब ये होता है ना कि वैचारिक संघर्ष कब मतलब सड़कों पे आने लग जाए। यानी कि हम ग्लोबल सिनारियो, अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी इसको देखें, जो फ्रांस में अभी घटित हुआ, जो कहीं बेंगलोर में जो हमारे उससे पहले हुआ एक फेसबुक पोस्ट को लेके, तो इस तरह की चीजें जब वैचारिक संघर्ष जो है वो उतर के सड़कों पे और मतलब शारीरिक होने लगे कि भाई हम उसके विचारों से सहमत नहीं है तो हम उसे मार ही डालेंगे, तो ये चीजें जो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस है, ये असहिष्णुता है, और लोकतंत्र में असहिष्णुता के कोई भी स्थान नहीं है। लोकतंत्र में हमको स्वीकार्यता, सभी विचारों को स्वीकार करना है। कोई भी विचार हो लोकतंत्र में, उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंसा कोई करता है तो हिंसक कार्रवाई पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं है, स्वतंत्रता है। देयर इज फ्रीडम, देयर इज नो लाइसेंस। तो इसलिए अभिव्यक्त कीजिए, लेकिन अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, लेकिन उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी है संविधान में, जहां चाहे वो सांप्रदायिक सद्भाव हो, चाहे वो विदेशी मुल्कों के साथ रिश्ता हो, चाहे अश्लीलता हो, चाहे नैतिकता हो, इन सब विषयों को ध्यान रखकर ही आपको जो है अपना पत्रकारिता करनी है। आप उस लक्ष्मण रेखा को लांघ नहीं सकते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम उन बातों का ध्यान रखें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन स्वच्छंदता नहीं है। और
अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है, और उस जिम्मेदारी को जो है एहसास होना बहुत आवश्यक है मीडिया के लिए भी, कि ये मेरी जिम्मेदारी है, इसको मुझे समझने की आवश्यकता है, ये मैं मानता हूं। अच्छा सर, जो टीवी मीडिया का जो वर्तमान चेहरा है, जिसकी वजह से हमें ये चर्चा करनी पड़ रही है, या फिर जिस वजह से इतनी हमें डिस्कशंस करने पड़ रहे हैं, उसमें आप ये वैनिशिंग ऑफ रिपोर्टिंग टीम्स को जिस तरह खत्म किया गया, और एंकर कल्चर का कितना रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, कितना बड़ा रोल मानते हैं कि उसकी वजह से ये चेहरा हमें आज देखने को मिल रहा है, कि जिसको हाँ, हम... नहीं, देखिए, वही मैं बता रहा हूं कि जहां व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले पत्रकारिता में टीम वर्क हुआ करता था, हम सब लोग फील्ड में जाते थे। आपने मेरे परिचय में भी बताया कि मैं बहुत फील्ड वर्क मैंने किया है। जी सर। उस वक्त व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं था, व्यक्ति की रिपोर्टिंग महत्वपूर्ण थी, ग्राउंड रिपोर्टिंग महत्वपूर्ण थी। आज चर्चाएं महत्वपूर्ण हो गई है, और उन विषयों को लेकर जिनका शायद जन सरोकार कुछ नहीं है, ऐसे मुद्दों को लेकर चर्चाएं होती है। तो ये, लेकिन देखिए, ये भी एक बात को आप समझिए, समाज में भी परिवर्तन आ रहा है, और कहीं ना कहीं इन चीजों को समाज में एक बड़ा तबका पसंद भी कर रहा है, इसलिए इनका टीआरपी भी इनको मिल रही है, लोग इनको देख भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ है। समाज को भी चाहिए कि वो ऐसे चैनलों को, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो टेलीविजन हो, उन पत्रकारिता संस्थाओं को समर्थन करें जो जमीनी रिपोर्टिंग करती हैं। हम दोनों काम नहीं कर सकते हैं, हम आलोचना भी करें और समर्थन भी करें, ये नहीं हो सकता है। ऐसे चैनलों को जिनका जन सरोकार नहीं है, उनका समर्थन बंद होना चाहिए, उनको सब्सक्राइब ही करना बंद कर दीजिए, देखना बंद कर दीजिए, अपने आप फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे, आप लिखेंगे नहीं, सोशल मीडिया में नहीं लिखेंगे, देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, जिस तरह एक सशक्त लोकतंत्र के लिए सक्रिय मतदाता की आवश्यकता है, जागरूक मतदाता की आवश्यकता है, वैसे ही एक सशक्त मीडिया के लिए सक्रिय और जागरूक पाठक, दर्शक और श्रोता की आवश्यकता है। सर, ये तो आपने बताया, और अभी जो रिसेंट में जो एक चीजें उछली, टीआरपी स्कैम, और ये टीआरपी का जितना इतना बड़ा मसाइल बना, इस सब में क्या हुआ कि आरोप प्रत्यारोप का एक दौर चला, जन सरोकारों की बातें हवा हो गई पूरी तरह, मतलब उनको स्पिरिट की तरह उड़ा दिया गया, और जो ये एक दूसरे पे चैनल आरोप लगाने लगे, अपने आप को साधु संत दिखाने के चक्कर में जन सरोकार तो ऑलरेडी पीछे छूटे हुए थे, और इस दौरान जो थोड़े बहुत बचे थे वो भी खत्म कर दिए। तो इस पूरे सिनारियो को पिछले 4 महीने से जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो रिपोर्टिंग हुई, उसके अलावा कई ऐसे सेंसिटिव केसेस में जो रिपोर्टिंग हुई है, पालघर इंसिडेंट हो, चाहे कोई भी इंसिडेंट हो, मैं किसी बड़े मीडिया हाउस का बैनर का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने जो कारगुजारियां दिखाई अपनी अपनी अलग अलग तरीके से, उसको आप किस तरह से देखते हैं? एक बड़ी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होने के नाते और पत्रकारिता का इतना पुराना विद्यार्थी होने के नाते, आपकी क्या उसको, आपका क्या मतलब उसका? नहीं, मैंने तो हमेशा से मैं और ये कोई नई बात नहीं है उमेश जी, मैं ये भी आपको बता दूं। आज, क्योंकि आज चर्चा हो रही है तो हमें लगता है ये आज हो रही है मीडिया में। मीडिया ट्रायल क्या प्रियदर्शनी मट्टू के केस में नहीं हुआ था क्या? मीडिया ट्रायल क्या जेसिका लाल वाले मामले में नहीं हुआ था क्या? मीडिया ट्रायल क्या आपके जो है वो जो बच्ची नोएडा में आरुषि तलवार के मामले में नहीं हुआ था क्या? तो मुझे लगता है कि ये तो कोई नई बात तो है नहीं। मीडिया ट्रायल, सनसनीखेज खबरें, ये भी कोई नई बात तो है नहीं। तो इसलिए आज अभी दिख रहा है, तो हमारे पास एक और प्रकरण आ गया कि एक दुर्भाग्यपूर्ण मौत एक अभिनेता की हुई, उसको लेकर जो चला, तो वो भी एक ट्रायल बाय मीडिया ही था। देखिए, मीडिया का काम, इसमें कोई दो राय नहीं कि न्याय दिलाना है, लेकिन मीडिया खुद ही तय कर लें कि गुनाहगार कौन है और सजा भी सुना दें। तो मैं समझता हूं कि जज की भूमिका, न्यायपालिका की भूमिका में मीडिया को नहीं आना चाहिए। ये चौथा स्तंभ है, तो ये सभी स्तंभों की अपनी अपनी भूमिका है। विधायिका की अलग भूमिका है, न्यायपालिका की अलग भूमिका है, कार्यपालिका की अलग भूमिका है, और मीडिया की अलग भूमिका है। तो हम, वही मैंने कहा, जो लक्ष्मण रेखा है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हमारी भूमिका है इस कि दौरान अगर सबसे अन्याय ज्यादा हुआ वही है हुआ, तो उसको अदालत तक पहुंचाना, अदालत को समर्थन करना, अदालत में वो जो सबूत है
उसको पेश करवाना, अदालत के नजरों में लाना उस विषय को, और अगर नहीं हुआ तो उसको लेकर, लेकिन कौन गुनाहगार है सजा सुनाना, पहले से ही तय करना कि कोई मौत हुई है तो वो कत्ल है या आत्महत्या है, ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया अपना संशय बोल सकता है कि हमें लगता है कि ये कारणों से, परिस्थितियों को देखते हुए क्या ये हो सकता है, क्या इस पर जांच की आवश्यकता है, लेकिन हमें वो तय करना कि क्या है, ये मुझे लगता है कि ये हम अपना लक्ष्मण रेखा को उल्लंघन कर रहे होंगे। जो कि तो पिछले कुछ ये दिनों में वही हुआ, लक्ष्मण ये रेखा। कोई नई बात नहीं है, ये चलता आ रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए हम जो पुराने पत्रकार हैं, हमको तो कम से कम ये नहीं लगता कि इसमें कोई नयापन है, ये चलता आ रहा है, अलग अलग रूप बदला है, स्वरूप बदला है इसका, लेकिन ये पहले से ही चलता आ रहा है। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि चलता आ रहा है, और बीते 5-7 महीनों में जो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हुआ, ये पहले भी कई मौकों पर हुआ है, कई केसेस और कई केसेस में हुआ है। तो सर, ये सब तो हम इस चीज को और इस पूरे डिस्कशन को एक तरह से अगर हम कंक्लूड करना चाहें कि ये चीजें होती आई हैं और इम्प्रूवमेंट्स भी टाइम के साथ इसमें होते रहे हैं, कुछ लोग ऐसे उठ के आते रहे हैं जिन्होंने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, तो आप एज अ टीचर, एज अ सीनियर प्रोफेसर, आप आने वाले जो हमारी नस्ल के बच्चे हैं, हमारे बाद की नस्ल के बच्चे जो पत्रकारिता में अपना करियर देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं निराश तो हैं अंदर से, और कहीं ना कहीं ये टीवी का जो चेहरा देख रहे हैं कि जिस वक्त, सर आपको एक छोटी सी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस वक्त मैंने चुना था 2-3 साल पहले कि मैं पत्रकारिता की पढ़ाई करूंगा और पत्रकारिता में जाऊंगा, तो बहुत लोगों ने बोला था कि गाली खाने के लिए तैयार रहना और सब चीजें देखने के लिए। मैंने बोला कोई बात नहीं, रिस्क लिया जाएगा, देखा जाएगा। तो सर, आप आने वाले उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि इस स्ट्रक्चर को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, कैसे रीस्ट्रक्चर किया जाए, और कैसे इसे दोबारा एक चौथे स्तंभ जैसी मजबूती दी जाए? देखिए उमेश जी, ऐसा है कि आपकी जो पीढ़ी है बड़ी सौभाग्यशाली पीढ़ी है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी ने आपको ये सुविधा दी है कि आप स्वतंत्र रूप से अपने बात को रख सकते हैं। शायद आप ये चर्चा तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया में नहीं कर पाते। जी सर, बिल्कुल यकीनन है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके पास एक यूट्यूब है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास और अन्य प्लेटफॉर्म्स है जिसके माध्यम से आप अपनी बात को रख सकते हैं। तो वो जो हताशा निराशा हम लोगों में हुआ करती थी जब हम लोग बात नहीं कर पाते थे अपने मन की बात, तो वो आपके अंदर नहीं है, टेक्नोलॉजी ने आपको वो सुविधा दी है। और कई लोग आज आपके जैसे युवा पीढ़ी के लोग जो है आज उससे एक स्वतंत्र पत्रकारिता भी कर पा रहे हैं और अपने लिए एक आय की भी व्यवस्था कर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों को निष्पक्ष सूचना की आवश्यकता है, स्वतंत्र समाचार की आवश्यकता है, और लोग ऐसे प्लेटफॉर्म को खोज भी रहे हैं, लोग ऐसे प्लेटफॉर्म को समर्थन भी दे रहे हैं। क्राउड फंडिंग के माध्यम से आज कई डिजिटल प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जो जनता द्वारा समर्थित है। तो जनता आज जो 400 रुपए देकर मल्टीप्लेक्स में पॉपकॉर्न खरीद सकती है, वो जनता स्वतंत्र समाचार के लिए भी पैसा देने के लिए धीरे धीरे मानसिकता बना रहे हैं। ऐसे में मैं समझता हूं कि युवा पीढ़ी को अब बहुत ज्यादा समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम अपने मीडिया छात्रों को तो वही मूल्य जो पिछले कई दशकों से सिखाते आ रहे हैं उसी को ही आगे भी सिखाएंगे। उन मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उन सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, हम उनको अवगत भी कराएंगे कि आज क्या हो रहा है, हम इससे भी अवगत कराएंगे उनको, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि वो उन आदर्शों का, उन मूल्यों का अलग जगाए रखें। भले कुछ समय के लिए उनको समझौता करना पड़े, लेकिन उनके अंदर इतने मजबूत मूल्यों को लेकर हम संस्कार पैदा करें कि वो देर सवेर वो अपना एक स्वतंत्र रास्ता निकालेंगे, ये हमें उम्मीद है। कुल मिला के असर ऐसा कि माना जा सकता है कि अभी हमारी पीढ़ी को, हमारे बाद की पीढ़ी को निराश होने की जरूरत नहीं है अगर वो पत्रकारिता में अपना भविष्य देख रहे हैं, तो क्योंकि वो मूल्यों के साथ और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ अपना समन्वय बना सकते हैं, और संस्कार उतने मजबूत उन्हें दिए जाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दर्शकों, ये हमारे साथ थे प्रोफेसर केजी सुरेश, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति,
जो कि बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य का क्षण था कि इन्होंने हमारे लिए समय निकाला और आप हमारे साथियों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका में हमारे साथ जुड़े। तो यही कहना है बकौल प्रोफेसर के जी सुरेश की निराश होने की जरूरत नहीं है, और जो कि हमारे शो का मकसद भी है कि आपकी निराशाएं, आपके प्रश्नों के हल यहाँ से निकाले जाएं। एक चिल्ला चोट भरी बहसों से दूर किसी ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों को बुलाया जाए जो आपके सवालों का, जो आपके सरोकारों से जुड़े हुए बातों का जवाब दे सके, आपकी बातों को हल कर सके। तो वही प्रोफेसर के जी सुरेश सर ने किया यहाँ पे, और यकीनन ये विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके कई सवालों के हल यहाँ से मिल जाएंगे, जो आपके 2 साल से 3 साल से जहनों में पनप रहे होंगे पत्रकारिता में आने के बाद कि यार अब क्या करना है, हम कहाँ आ गए। क्या है कि वो शायद प्रोफेसर के जी सुरेश सर को यहाँ से सुनने के बाद, या अलग अलग माध्यम से आप सुनते रहे होंगे, तो यहाँ से सुनने के बाद आप देख सकते हैं। तो सर, मेरी आपसे एक विनती है कि आप आखिर में हमारे व्यूअर्स के लिए कोई कुछ कहना चाहें, और कुछ मतलब एक आखिरी संदेश, एक कंक्लूडिंग रिमार्क जिसे हम बोलते हैं, एक आप देना चाहें। नहीं, मैं बहुत खुश हूं कि आप जैसे जो है युवा पत्रकार जो है एक सकारात्मकता पैदा कर रहे हैं समाज में, और मैं यही बात करूंगा कि सकारात्मक रहें, और भविष्य उज्जवल है मीडिया का। लोगों के अंदर एक जागरूकता है, खासकर जो फेक कंटेंट, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन के आने के बाद बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में लोग सही सूचना की तलाश में हैं, और वो ऐसे प्लेटफॉर्म की खोज कर रहे हैं जहां उनको सही, सत्यनिष्ठ जो है सत्यपरक समाचार उनको मिले। तो मुझे लगता है कि आप जैसे युवा पीढ़ी के लोग बेनकाब करेंगे जो लोग गलत खबरें फैला रहे हैं, और सही खबरों को सही परिप्रेक्ष्य में रख के संतुलन के साथ मध्यम मार्ग से चलते हुए आप जो है न ध्रुवीकरण से हटकर स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष होकर, पक्षकार न बनकर बल्कि पत्रकार बनकर अपनी बातों को आप समाज के सामने रखेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। मुझे आने वाले नई पीढ़ी से बहुत उम्मीदें हैं। हमसे जो गलतियां हुई है वो आप न दोहराएं। आप एक बेहतर समाज और बेहतर राष्ट्र का निर्माण में आप सब जो है अपना योगदान दे, ये मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद। जी सर। तो दोस्तों, आप इसी तरह के विद्वत जन लोगों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए अपने विश्वविद्यालय के दोस्तों के साथ, अपनी पत्रकार बिरादरी के साथ, और इसको बढ़ाइए जिससे कि सबको अपने अपने सवालों का, सरोकारों का हल मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और तो दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी विद्वत जन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।